So students, let's start the lab now. So before moving on towards the lab, I hope that you have all gone through the concept of bus admittance matrix. So let me ask Muiz Alam, what is the bus admittance matrix? Can you specify me? I think he is not hearing. So 188. Can you specify me? 075 374. Is anyone hearing in this question? Yes, sir. Okay. Um, I thought that all of you were sleeping. So let's not Yes, sir. All sleep good. during the lab. Okay. So Yes, sir. what is mean by bus admittance matrix? I was asking the question. Anyone, just किसी को भी आता हो तो वो बता दें. सर वो बेसिकली जो दो मैट्रिक्स दो बसेस होते हैं उसके दरमियान जो रेजिस्टेंस होती है उसको यानी वो 1 ओवर रेजिस्टेंस करते तो एडमिटेंस हो जाती है उसका जो मैट्रिक्स बनता है जो कोर्स में हमने पढ़ा है तो शायद वो होगा. Yes, you are right. So if I scroll down this lab, so there are 3 bus bars in this network. Bus bar number 1, 2 and 3. Bus bar number 1 is the known bus, while the 2 remaining buses are unknown. So in order to find out the bus admittance matrix of this network, so what I will do that I will write this equation. Now since there are 3 bus bar in this network, so there will be having 3 cross 3 elements of the elements of the bus admittance matrix will be 3 cross 3. If I am having the 4 bus bar, as you can see here in lab task number 1, so in this case you will be having a bus bar, a bus admittance matrix of 4 cross 4. सो सबसे पहले आप इस क्या करेंगे कि जो आपके पास जो स्टेप नंबर 1 है, सो यू नीड टू राइट द करंट इज इक्वल टू बस एडमिटेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द voltages of each bus bar. So in case of this network, अभी क्या है कि आपके पास यहाँ पे 3 बस बार है, तो आई होप कि आपको जो बस बार के जो मिड में जो एडमिटेंस है, जो इम्पीडेंस है, तो आपको पता होगा कि इसका हम क्या लेते हैं, रेसिप्रोकल. So what we need to do, we need to find out the bus admittance matrix of this network. So if you see closer to this network, I hope you are watching this document, you are seeing this document. So between bus number 1 and bus number 2, the impedance is J0.1. So the method of construction of bus admittance matrix is such that, let me show you. So if I want to construct my Y bus, so I may write that it is having how much elements? 3 cross 3. So these are my
एलिमेंट्स। अच्छा, आप में से हर एक स्टूडेंट मेक श्योर कर ले कि आपके हाथों में कैलकुलेटर हो। सही है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट मस्ट होल्ड ए कैलकुलेटर, लैपटॉप with software and a piece of paper in case of any calculations। सही है। अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि इस बस एडमिटेंस मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, इसके डायमेंशंस क्या है? बॉयज। 4 नहीं सर 3 क्रॉस 3 होंगे। ओके 3 गुड। cross 3. Okay, good. So the dimensions of bus admittance matrix is 3 cross 3. Now, if I have a look at my network, तो यहाँ पे मेरे पास बस नंबर 1 किसके साथ कनेक्ट है? Only it is connected to bus number 2, and bus number 2 is only connected to bus number 3. बीच में लोड और जनरेटर भी तो है सर। नहीं, जब आप बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं सो यू ओनली लुक एट द ट्रांसमिशन लाइंस कनेक्शंस। सही है। बस एडमिटेंस मैट्रिक्स में आप जनरेटर्स को भी नहीं देखते और लोड्स को भी नहीं देखते। यू आर ओनली कंसर्न विद द ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स, आई मीन इम्पिडेंस। तो इस केस में अगर आप ये देखें कि बस नंबर 1 किसके साथ लिंक है? ओनली बस नंबर 2 के साथ। तो यहाँ पे जो इसका जो एलिमेंट होगा वो सिर्फ बस और 1 और 2 के साथ कनेक्ट होगा। सही है। 1 और 3 जो है तो वो 0 है, बिकॉज बस नंबर 1 इज़ नॉट कनेक्टेड टू बस नंबर 3। सो इफ let's go get back to here. So it is basically between bus number 1 and 2, 1 and 3. So I can write this matrix as y11, y12, y13। सही है। y21, y22, y23। I hope that is visible. So y31, y32 and y33। सो अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरे पास बस नंबर 1 और 2 के दरमियान कितना डिस्टेंस है, आप ज़रा डॉक्यूमेंट से यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आई एम हैविंग ए डिस्टेंस ऑफ j0.1 between bus number 1 and 2, while bus number 1 is not connected to bus number 3. So I am having a 0 impedance between bus number 1 and 3. Now if I take the reciprocal of 1 over j0.1, तो आपके पास क्या आएगा? -j10. Okay, so we are having here a negative sign, but we don't write these negative signs because these are always negative except for diagonal elements, right? So I am having a distance of j10 between bus number 1 and bus number 2, while I am having a distance impedance of 0 because bus number 1 is not connected to bus number 3. So this minus sign will cancel this minus sign, right? So this y11, आप में से कोई बता सकता है कि ये y11 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, वो तो है।
but which type of बस ये 0.1 J। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना, तो वो इन एक्सेप्ट फॉर दिस एलिमेंट वो इनका सम होगा, सही है। y11 is the sum of y12 plus y13, सही है। and you need to neglect this negative sign in case of diagonal elements, सही है। आपको समझ आ रही है? Yes, sir. Okay, so you need to write y11 is equal to the sum of these two admittances. So what is the sum of these two admittances? Take into account the negative sign. Minus J10. Minus J10. So I am having a y11 is equal to minus J10. Now moving on towards the next row of the bus admittance matrix. So bus number 2 is connected to bus number 1 as well as bus number 3. So we will having an elements of y21 as well as y22. So when I am writing about the y21, so I will take the reciprocal of this quantity, which is again minus J10, but since it is having a minus sign here, so these two signs will cancel out, so J10, and I am having an element of this is 2 3. So what was the impedance between bus number 1 and bus number 3, bus number 2? J10. So the minus sign get cancelled, right? And what was the distance between bus number 2 and bus number 3? Anyone? J0.2. So what is the reciprocal of J0.2? K minus J5. oh, the negative sign get cancelled, and we are having minus J10 and minus J5 as the two elements of this row. So what will be summation of these two quantities? Minus J15. So I am having a minus J15. I will write the minus sign. Is that clear? I think this is crystal clear. This should be crystal clear to you. Okay. Yes, sir. So moving on towards the bus number 3. So when I will write the third row of this matrix, so I will see to bus number 3. Bus number 3 is only connected to bus number 2, while it is not connected to bus number 1. So we will neglect y31 as 0 and y32. What is the distance between 3 and 2? J0.2. So the reciprocal of J0.2 is minus J5, and the signs cancel each other out. So the third element, which is the summation of y31 plus y32, so it is J5, sorry, it is 0, this quantity is 0, this is J5, and this comes out to minus J5 plus 0 is equal to minus J5. So this is the method to construct
the bus admittance matrix. Now you are done with the calculation of bus admittance matrix. So what is the next step? Step number 2 is to calculate the values of equations, mathematical equations of V2 and V3, because since the bus number 1 is known, which is the slack bus, I hope I have already told you कि जो हमारे पास जो reference bus होता है वो already known होता है. A lot of students were asking the question that what is the need to take the slack bus. अभी आपका वो जो सवाल था ना वो अभी आंसर होगा. आंसर इसलिए होगा कि this bus is reference bus, right? So the quantity, the parameters of this bus are known. So we don't care about the I1. This is don't care condition. Do you remember the don't care condition from DLD? What we will do? सर ये डोंट केयर कंडीशन वाली बात रिपीट कर देंगे? अच्छा, ये जो डोंट केयर कंडीशन है मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन डोंट केयर कंडीशन का मतलब ये है ना कि वी डोंट केयर अबाउट दिस I1. सही है, बिकॉज दिस इज नोन, V1 is known. We are concerned about the V2 and V3. सही है. So I2 is equal to minus S2 conjugate divided by V2 conjugate. Okay. So can anyone tell me that how is I1 is equal to S2 conjugate divided by V2 conjugate? Can anyone prove that? सर What actually is used to VI star होता है. P is equal to V into I. S is equal to V I conjugate asterisk. I hope you are getting that. So I conjugate is equal to what? S divided by V. So taking the conjugates of both sides, what I am having now? I am having these two conjugates get cancelled out. Can anyone tell me how these two conjugates cancel out? Because you are in 6th semester. सही है? Sir, ये क्या property चीज़? of conjugate key. Yes, this is the property of conjugate. So I get I is equal to S conjugate divided by V conjugate. Now moving on towards the negative sign convention. अच्छा, ये जो यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है ये क्या है यहाँ पे? This is the current injected into the bus, into the load. जो करंट इंजेक्शन होती है हम उसको कन्वेंशन के तौर पे माइनस लेते हैं. सही है, दिस इज जस्ट अ कन्वेंशन. सो वी गेट these types of matrices. We are having 3 matrices here: current matrix, voltage matrix, which is basically a column matrix. These two are column matrices and this is a 3 by 3 matrix. I hope you remember the properties of a matrix. So if I write this parameter, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? कोई बता सकता है? What is the value of this parameter from this equation? So I will multiply this row with this column. I think you are getting that. Yes sir. Okay.
आई होप कि कोई भी स्टूडेंट सो नहीं रहा है, सही है? हर एक स्टूडेंट ये लैब ले, Yes, sir. दिस इज मैंडेटरी, ओके? सो in order to write the value of S2 conjugate divided by V2 conjugate, so I will multiply this row with this column, सही है? Or in order to find out the value of S3 conjugate divided by V3 conjugate, I need to multiply this row with this column. So these two values are I came up with these two values. अभी ये जो equations है, these are not manipulated in terms of V2 and V3. So let's manipulate these two mathematical equations. So what will I got? I am getting V2 is equal to this equation and V3 is equal to this equation. So let's take a pause at this point. ये दो इक्वेशन आप अपने साथ जहन में रख लें या नोट करें या जो मैनुअल में है उसमें हाईलाइट कर दें फॉर टाइम बीइंग। अब आते हैं कि how to find out the bus admittance matrix from the Powerworld simulator. So first of all, make the connection, make the circuit in Powerworld simulator, simulate it, and then go to Model Explorer. This click on solution details right here. Solution details. This is Model Explorer and this is solution details. So you will click on Y bus. By clicking on Y bus, you come up with a window. मुझे थोड़ा जूम करने दे ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो। यहाँ पे जो ऊपर मेंशन है वो है बस 1, बस 2, बस 3 और जो कॉलम है यहाँ पे वो है बस 1, 2, 3, सही है? तो मैंने आपको बताया था कि बस नंबर 1 और 2 के दरमियान जो भी डिस्टेंस होगा वो y12 हम यहाँ पे लिखते हैं y13, चूँकि 1 और 3 के दरमियान कोई भी डिस्टेंस नहीं है, मतलब 1 is not connected to bus number 3, so we skip that or write 0. लेकिन Powerworld simulator इसको skip करेगा, means you assume this quantity to be 0, सही है? And also 3, 1, this is also 0 because there is no link between bus number 1 and bus number 3, right? अच्छा, so that was how to calculate the bus admittance matrix from the Powerworld simulator. अच्छा, आप में से कोई एक बंदा इस तरह करे कि मुझे रिस्पॉन्ड किया करे ताकि मुझे पता चले कि you are getting it. At least one person must respond to me directly. Okay, sir. Who? Okay, 263, you respond to me directly. Okay, so this was the method how to calculate the bus admittance matrix from Powerworld simulator. Now it is the turn how to write the MATLAB code to find out the bus to find out the values of V2 and V3, right? Okay, sir. अब आते हैं दोबारा इन इक्वेशंस की तरफ जो कि आपने एक साइड पे हाईलाइट किए हुए थे या इसको नोट किए हुए थे, द टू इम्पोर्टेंट इक्वेशंस। अच्छा, जो मैटलैब के अंदर जो मैटलैब की जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं उसमें एक दो कन्वेंशंस हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, सही है? सही है, The first convention is that you never write J in MATLAB. You always write iota, which is represented by I. Yes, you write complex number by iota, which is I. And also you can't write the subscript in the
MATLAB. So you need to represent V2 by V2 simply. So the equation was conjugate of V2 S2 divided by V2. So how can I write this equation in MATLAB? So let's look at this equation. So conjugate stands for CONJ stands for conjugate, and the bracket quantity represents the conjugate of that quantity. And in denominator you are having a conjugate of V2. So you write conj CONJ ब्रैकेट V2 जिस क्वांटिटी का आप कंजुगेट लेना चाहते हैं उसको आप ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ मैटलैब. सही है. And you are having 10 iota multiplied by V1. So J10 into V1. I can't write this J10 into V1 inside the syntax of MATLAB. So I will write 10 iota static V1. Static stands for multiplication inside the MATLAB. And I can't write J5 V3. I will write 5 iota static V3, and I will divide this whole quantity divided by 15 iota. So I am done with equation number A, equation number B. Similarly आप उसको इस तरह लिखेंगे. Then I am having a for loop. आप में से कोई बता सकता है कि ये for loop हम क्यों लगाते हैं यहाँ पे? मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज डालने के लिए सर. No. Do you Repetition know the value of iteration? Do you know the meaning of iteration? What is mean by iteration? Okay, so you don't know the meaning of iteration. And what is the meaning of flat start? Okay, so let me explain these two things because you don't know the meanings of these two things. So the first thing is iteration, right? Let's suppose I am having a value of y1 is equal to 10 x naught minus y naught. This is my equation, a random equation, mathematical equation. Is that clear? Yes sir. Okay, so what is the meaning of flat start? If I am having a flat start, means that the initial values are always 1. This is the meaning of. So if I am having the flat start, means put 1 in iteration number 1, y1. This is basically iteration number 1. तो अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ y1 is equal to 10 minus 1 is equal to 9. This is my first iteration. What will be my second iteration? y2 is equal to 10 into सोना नहीं है, सही है, जागना है. यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? x नोट x नॉट. दोबारा सोचें इसके ऊपर. I will write x1 because this is my second iteration. In second iteration, I will use the previous values of these two things. The previous value, which is x1, right? Okay. And the previous value of y is y1. So y1, you know the value of y1, which is, let's say, equation for the x n is equal to 2
एक्स नॉट। सही है। आई होप Yes, ये sir. थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो उसको मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए मैं फ़िलहाल आप इधर इतना जो है तो सीख लें कि जो एक होती है प्रेजेंट वैल्यू, एक होती है पास्ट वैल्यू सिग्नल एंड सिस्टम में। मैं उस रेफरेंस से चलो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो प्रेजेंट वैल्यू होती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे? एन से। जो पास्ट वैल्यू होती है वो उसको किससे करते हैं? Y minus n minus 1 से और जो फ्यूचर वैल्यू होती है, n what is plus the 1. future value? N plus 1. It is the future value, it is the present and it is the past value. अभी आप क्या करते हैं कि जो जो फ्यूचर वैल्यू होती है वो कहाँ से आती है? Present प्रेजेंट से। और जो प्रेजेंट वैल्यू होती है वो कहाँ से आती है? past. पास्ट में ओके। मैं ज़्यादा इस चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता क्योंकि अभी आप बेसिक्स में है ना। मेरे कहने का जो मकसद है या जो खुलासा है वो ये है कि एट्रेशन में जब आप करते हैं ना y1 y2 सही y3, दिस इज़ दी आइट्रेशन। आप चलते जाते हैं। आप कहाँ तक जाएंगे? जब तक ये वैल्यू आपके पास ऑप्टिमल ना आ जाए, ये डाइवर्ज या कन्वर्ज ना हो। सही है। अब ये डाइवर्जन और कन्वर्जन का मतलब अगेन क्या है? कन्वर्जेंस का मतलब क्या है? सर किसी एक पॉइंट की तरफ जा रही होगी वैल्यूज, ओके। कन्वर्ज और हो रही डाइवर्जेंस? फैल रही होंगी वैल्यूज. ओके। अभी यहाँ पे ये है कि लेट सपोज मेरे पास जो सोल्यूशन है V2 का वो है, लेट मी शो फ्रॉम दी मेटलैब, या फिलहाल मेटलैब को स्किप कर दे। फिलहाल यहाँ पे 0.9 और इसका जो एंगल है वो लेट से -8 डिग्रीज। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ, दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ V2। अभी ओके अगर सर. मैं आइट्रेशन करता हूँ V2 का, दिस एरो स्टैंड्स फॉर आइट्रेशन। सही है। मैं करता हूँ एक आइट्रेशन करता हूँ, मेरे पास वैल्यू कन्वर्ज नहीं हो रही 0.9 तक। सही है। मैं दोबारा आइट्रेशन करता हूँ, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, अप टू सो ऑन। एक एक स्टेज इस तरह आएगा ना कि मेरे पास ये जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी, कन्वर्ज होनी शुरू हो जाएगी 0.8991। सही है। फिर नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ जाएगी 0.89। सही है। 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास आ जाएगी 0.9। अभी ये जो वैल्यू यहाँ से कन्वर्ज हो गई है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमल सोल्यूशन कन्वर्जेंस। सही है। तो ये जो वैल्यू है ये इसका सोल्यूशन है फाइनल। और ये जो यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है पहले स्टेप में हो सकता है आपके पास 0.6 हो, फिर 7 हो, फिर 8 हो, तो ये वैल्यू कन्वर्ज होगी। सही है। तो ये कहाँ तक कन्वर्ज होगी? इस वैल्यू तक, इस पॉइंट तक, बिकॉज दिस इज सोल्यूशन ऑफ V2। ओके सर. Similarly, you are having two quantities here unknown. Let's denote these quantities by cross unknown. सही है। ये दो क्वांटिटीज अननोन है। आपके पास नोन क्वांटिटी कौन सी है? स्लैक बस वाली। सही है ना। सही है सर. अच्छा ये जो स्लैक बस वाली क्वांटिटीज हैं तो इसको हम नोन कहते हैं, इसको हम अननोन कहते हैं। सही है। सो लेट्स राइट द कोड इन मैटलैब. Let's simulate the code in MATLAB. I have already written the code in MATLAB. आपको नज़र आ रहा है? यस सर. कोड नज़र आ रहा है MATLAB के अंदर? यस सर, नजर आ रहा है. ओके। अच्छा, मैंने क्या किया कि मैंने कोड को यहाँ पे लिखा। सही है। MATLAB के अंदर अभी CLC और क्लियर ऑल का मतलब भी क्या है वो तो आपको, क्योंकि ज़ीरो से तो आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो तो आपको पता होंगे ना। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको बताया था कि मोस्टली in power system we assume the quantities as plate start.
So for having a value of flat start, I will assume V1 is known, which is these three quantities are known. So right here is known quantities. Okay, Yes, sir. and these two are initial guess, yeah, initial condition, you may as you wish. So Excuse me, sir. yes, yes, सर हमने एक और मेथड सीखा हुआ है क्रैमर रूल से सर, वो हम कर सकते हैं इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए, अगर ये समझ ना आए तो। यार असल में क्रैमर रूल में मसला ये है ना कि उसमें आप आइट्रेशंस को डिफाइन नहीं कर सकते। ये जो यहाँ पे जो लूप मैंने लगाए हैं ना, दिस इज़ ओनली मेंट फॉर आइट्रेशन। तो क्रैमर रूल से अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं नो इशू, लेकिन आपके पास जो यहाँ पे जो पावर सिस्टम में जितने भी जो मेथड्स होते हैं, हुआ वो न्यूटन रॉप्सन हो, हुआ वो गॉस सीडल हो, हुआ वो डीसी कंपोनेंट मेथड हो, जितने भी है, सही है। तो यहाँ पे जितने भी मेथड्स होते हैं उसमें हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वी नीड टू आइट्रेट द सिस्टम, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा सही कि है आपके सर। पास दो इक्वेशंस है, सही है, उसके ऊपर आप लूप लगा देंगे। अच्छा, ये जो लूप का जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं आप, कि दिस मस्ट बी कंसिस्ट ऑफ 10 आइट्रेशंस। आई कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आइट्रेशंस एज आई नीड इट। क्योंकि अगर आपके पास कोई सिस्टम कन्वर्ज नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे कि आप आइट्रेशन नंबर ऑफ आइट्रेशंस क्या करेंगे, मैक्सिमाइज करेंगे, सही है। ओके सर। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास within the 10 iterations either my system is converging or not converging. So I have two equations, equation number A, which is conjugate of S2 divided by V2 and so on, equation number B, which is conjugate of S3 divided by V3 and so on. कोई बता सकता है कि ये दो कमांड्स मैंने क्यों यूज़ किए हुए हैं यहाँ पे। दिस कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द आइट्रेशन नंबर, सही है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास आइट्रेशन नंबर भी डिस्प्ले हो, सही है। दिस कमांड इज़ यूज टू शो द वैल्यू ऑफ ईच पैरामीटर एट द एंड ऑफ ईच आइट्रेशन, सही है। These two commands are written to convert the value from rectangular into phasor form. Phasor means magnitude and angle form, सही है। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो जे के फॉर्म में, आयोटा के फॉर्म में आएगी। जो आपके पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, ए प्लस बी आयोटा, सही है। तो अच्छा, इस फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, ए प्लस बी आयोटा। मैंने आपको क्लास में भी बताया था, रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। और जो मैग्नीट्यूड और एंगल होता है उसको हम कौन सा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, पोलर फॉर्म। polar form of representation. So you need to convert the rectangular form of representation into polar form. So ABS stands for the absolute value of the magnitude of this quantity. ब्रैकेट में जो भी क्वांटिटी होगा वो इसका एब्सोल्यूट या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेगा, सही है। और ये जो एंगल है ये इस क्वांटिटी का एंगल कैलकुलेट करेगा। और इसके साथ मैंने 180 डिवाइड बाई 5 इसलिए लिखा है ना कि ये इसको कन्वर्ट करे फ्रॉम रेडियंस टू डिग्रीज, सही है। यस सर। तो यहाँ पे लेट्स रन दी फाइल। सो आई एम हैविंग, अभी यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट आइट्रेशन। सो आई एम हैविंग ए वैल्यू ऑफ दिस 1 + 0 1 + j 0.04, दिस इज V2 एंड दिस इज V3, सही है। Now until my value is converging, I think at between iteration number 4 and iteration number 5.
Can anyone tell me how this is value is converging? तो 9759 से 9788 पे चला गया, क्योंकि वो 9 कन्वर्ट होगा 6 बन जाएगा और 6 के बाद 7 8 बन जाएगा। नहीं, इसका मतलब ये है ना कि मेरे पास यहाँ पे अप टू 2 डेसिमल पॉइंट, अगर मैं एक्यूरेसी को सपोज करूँ तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या वैल्यू है 0.98। इस स्टेप के बाद जो भी क्वांटिटी है वो 0.97 पे कांस्टेंट हो रही है आइट्रेशन नंबर 4 के बाद, सही है। और जो V3 की जो वैल्यू है वो 0.89 पे कांस्टेंट हो रही है, देखें 0.89 पे कांस्टेंट हो रही है। तो इट मींस कि ये जो आपके पास जो वैल्यू कांस्टेंट हो रही है दिस इज़ एक्चुअली कन्वर्जिंग, सही है। ये वैल्यू आपके पास कन्वर्ज हो रही है, सही है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं आई डोंट नीड iterations greater than 10 because my value is converging at this point. So I will having a value of V2 is 0.97 magnitude and degree is minus 5.86 degrees. This is magnitude and this is angle, and I am having a value of V3 as 0.90 and the angle is minus 11.02 degrees, सही है। यस सर। अभी आप क्या करेंगे कि आप इस चीज़ को कंपेयर करेंगे विद द पावर वर्ल्ड सिमुलेटर, सही है। तो so you will get a final value of the V2 and V3। अच्छा, अब आते हैं लैब टास्क नंबर 1 की तरफ। So let's see what is in the task number 1. Instead of 3 bus network, I am having a 4 bus bar network, सही है। Now इस केस में आपके पास जो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स होगा वो उसके पैरामीटर्स क्या होंगे? What should be the parameters? Yes, 4x4. So you again need to follow various steps, सही है। अच्छा, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे कि आप बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कैलकुलेट करेंगे, सही है। ठीक है सर। आप जो रिपोर्ट बनाएंगे ना आप इस सीक्वेंस में बनाएंगे, सही है। ये जो मैंने सीक्वेंस ये मैंने मतलब दिखा रहा हूँ ना, तो इसको अपने साथ एक साइड में नोट करें कि इसमें ये स्टेप्स होंगे, सही है। आपने ये जो प्रोसीजर है ये टास्क नंबर 1 के लिए भी करना है, जो टास्क नंबर 2 है वो आपका असाइनमेंट होगा, सही है। तो टास्क नंबर 2 आपने अभी परफॉर्म करना है, सही है। और आपके जितने भी टेबल्स हैं उनको फिल करना है, सही है। मैं आपको टाइम दे दूंगा, तो उसी टाइम के अंदर आपके जितने भी क्वेरीज होंगे वो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, सही है। क्लियर? सर ये स्टेप 1 जिसमें जो Y11 होगा ये 12.5 कैसे हो रहा है? ये अच्छा, टास्क ये तो 1 कल, हाँ अच्छा, ये कल नहीं, ये इस तरह हो रहा है ना कि आपके पास, लेट मी शो यू दी ओरिजिनल डायग्राम। अच्छा, अभी बस नंबर 1 और 2 के दरमियान कितना इम्पिडेंस है? 0.1। 0.1, सही है। अगर आप इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाता है? 10 आ जाता है। अच्छा, हाँ, अभी ये जो है ना, तो मैंने आपको बताया था कि दिस y11 इज द समेशन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, दिस इज 0। सो तो सर ये चीज पूछनी थी कि अगर एक साथ सम करते हैं 0.4 प्लस 0.1 तो ये आंसर आएगा हमारे पास 2j, लेकिन अलग अलग नहीं सम करते तो नहीं, आप उसको इम्पिडेंस को सम अप कर रहे हैं, आपने एडमिटेंस को सम अप कर रहे हैं। यू नीड टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ दैट क्वांटिटीज। ओके, लेकिन जब 2 पे आएंगे तब भी इस तरह करेंगे। अच्छा, अलग अलग सम कर, जब ठीक है सर, समझ गया। अलग अलग मीन जितने भी पैरामीटर्स हैं आप उन सारों को सम अप करेंगे, सही है। ओके। अच्छा, अब इस केस में क्या है कि आपके पास
y जो 1 है, बस नंबर 1 है, वो 2 के साथ भी कनेक्ट है, 3 के साथ भी कनेक्ट है, सही है। तो आपके पास जो यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएंगे ना, जो बस नंबर 1 है ना यहाँ पे, दिस इज बस नंबर 1, वो 2 के साथ भी कनेक्ट है, 3 के साथ भी कनेक्ट, सही है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ J0.1? दिस इज J10। इससे क्या आ रहा है? -J2.5, आई होप सो, सही है। तो आपने इन दोनों को सम अप करना है यहाँ पे। ओके सर। यहाँ पे आपने इन दोनों को सम अप, ये डायगोनल एलिमेंट्स जितने भी है वो हमेशा के हमेशा क्या आएंगे? नेगेटिव में आएंगे, सही है। आगे समझ सर। इसके बाद आपने पावर वॉल सिमुलेटर में बस अटेम्प्ट मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, उसको साथ कंपेयर करना है, इसको अपने ओरिजिनल जो कैलकुलेट किया हुआ है उसके साथ कंपेयर करना है, सही है। स्टेप नंबर 2 में आप इक्वेशन लिखेंगे, करंट मैट्रिक्स इज इक्वल टू बस एडमिटेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मैट्रिक्स, सही है। फिर आपने क्या करना है कि आपने वही मेथड वही है, मैं सिर्फ ये टास्क नंबर 1 को आपको दिखाना चाहता हूँ कि टास्क नंबर 1 आप किस तरह करना है, सही है। बस एडमिटेंस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज मैट्रिक्स। फिर आपके पास यहाँ पे चूंकि पिछले जो टास्क में उसमें कितने अननोन बसेस थे? सर 2 तो आपके पास इक्वेशन कितने थे? 2 इक्वेशन थी ना। और यहाँ पे कितने अननोन बसेस हैं? 3 तो यहाँ पे इक्वेशंस भी उतने ही 3 है होंगे अननोन, जो सही है, V2 V3 और V4, सही है। सर। ये और यहाँ पे भी कोड के अंदर हमने ये स्टेप करने हैं सारे, मतलब ये जो आपने स्टेप अभी दिखा रहे हैं इस तरह स्टेप लिखने हैं लैब इस रिपोर्ट। तरह स्टेप लिखना है, बिल्कुल। वो ये जो कोई लैब थ्योरी टास्क नंबर 1 है ना जी, थ्योरी तो नहीं लिखनी ना, सॉल्व करने के स्टेप लिखने हैं बस। the theory they I think there is no need to write theory because यहाँ पे मैथमेटिक्स ज़्यादा इन्वॉल्व है ना, ओके सर। देयर आर ए लॉट ऑफ मैथमेटिक्स। यहाँ पे भी एज्यूम प्लेट स्टार्ट करना है, सही है। अभी यहाँ पे ये बस ये सिस्टम जब मैंने इसके अंदर सिमुलेट किया ना, ये पावर वॉल सिमुलेटर के अंदर, तो आपने हर एक बस बार के सामने उसके फील्ड वैल्यूज़ लिखने हैं। डू यू नो व्हाट इज़ मीन बाय फील्ड वैल्यूज़? किस किस वैल्यूज पे ऑपरेट कर रहा है? यस, हाउ टू राइट दीज मैग्नीट्यूड एंड एंगल। तो आप इस तरह करने हैं, आपने जाना है टूल्स में से फील्ड के अंदर, और फील्ड के अंदर क्या सेलेक्ट करना है? बस फील्ड। So you need to click on that particular bus for which you are writing the value of magnitude and angle, and then you select the magnitude of voltage, angle of the voltage, and then you need to repeat that steps for the remaining 3 buses, सही है। Now another step is comparison between the MATLAB values and the Powerwall simulator values. Now let's share the MATLAB values. अच्छा, अभी मैं इस सिस्टम को सिमुलेट करता हूँ, मैं कितने इटरेशंस के लिए, नज़र आ रहा है आपको? 25। 25 इटरेशन। अच्छा, इस केस में क्या है कि आप मेरे पास वैल्यू आ रही है V2 की एंगल -3 -8 एंड -7, सही है। और ये वैल्यू दे, अगर मैं सर इसके साथ इटरेशन तो ये, अपने ऊपर है ना, कितनी मर्जी करने आप 25 की जगह 10 भी कर सकते थे। लेकिन उस केस में मैंने आपको बताया था कि देट डिपेंड्स अपॉन दी कन्वर्जेंस। अगर आपके पास यहाँ पे कन्वर्जन चेक करते हैं कि ये यहाँ पे वैल्यू किस स्टेप में कन्वर्ज हो रही है, तो यहाँ मेरे पास हो रही है ये कन्वर्जेंस स्टेप नंबर 3 से ऑनवर्ड ही हो रहा है। आप 10 भी कर सकते हैं, सही है। फॉर मोर एक्यूरेसी यू नीड द ग्रेटर नंबर ऑफ कन्वर्जेंस, सही है। ओके सर। अब इन 3 चीज़ों को जहन में रख के मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ, वो जो मैंने कैलकुलेट की हुई है पावर वॉल सिमुलेटर में, सही है। वहाँ पे मेरे पास कौन कौन से एंगल आ रहे थे? -3 आ रहा था, -8 आ रहा था, -7 आ रहा था, सही है। ओके।
मेटलैब के अंदर। और अच्छा, इन दोनों को आपने अभी कंपेयर करना है, सही है, मेटलैब को और पावर वर्ल्ड सिमुलेटर, सही है। सो दिस इज योर लास्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग द लैब टास्क। अभी आपने क्या करना है, अभी आपने ये करना है ना कि आपने लैब टास्क नंबर 1 को सॉल्व करना है अभी के अभी, ऑनलाइन रहते हुए, सही है। इस टास्क को आपने सॉल्व करना है इन द पावर वर्ल्ड सिमुलेटर एंड मैटलैब, एंड देन यू विल शो मी द रिजल्ट्स, शेयर विद मी द रिजल्ट्स। फिर जो है तो आपकी लैब हो जाएगी। लेकिन आपका ये जो टास्क नंबर 2 है ना, इन सारों चीज़ों को आप फेल करेंगे, सही है। ये जो टास्क नंबर 2 है ना, इसकी रिपोर्ट बनाएंगे। इसकी रिपोर्ट बनाएंगे, लेकिन बेहतर यही होगा कि इसमें जो टास्क नंबर 1 है ना उसको भी इंक्लूड करें, ताकि मुझे फिर बाद में चेकिंग में आसानी हो, सही है। तो आपने फ़िलहाल आप टास्क नंबर 1 परफॉर्म करें और उसके जो सर वैल्यूज़ है। कुछ बच्चों के जी। पास अभी सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो उसके लिए टास्क वन करना मुश्किल होगा, तो ये आप टाइम में कर देंगे, आपको दोनों टास्क सेंड कर देंगे। अच्छा, ये असल में इशू ये है ना कि मैं आपको कहता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप्स को प्रिपेयर करने हैं, इसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, लेकिन फिर भी आप जो है तो आप यू आर लेज़ी बिकॉज यू डोंट सर हमें यू हैव सॉफ्टवेयर या मिला है। कि तो मैंने लिंक शेयर की हुई है ना। सर मेरे अ, पास है, मैं दूसरों की सर बात कर रहा हूँ कि मेजोरिटी के में से कुछ के पास नहीं है। सर अभी मेरे ना लाइट गई हुई है तो मैं मोबाइल के ऊपर क्लास ले रहा हूँ। सर हम भी मोबाइल के ऊपर ले रहे हैं सर, यहाँ पेशावर में भी लाइट का मसला चल रहा है। ओके, अभी आपने इस तरह करना है ना कि ये सर जो यहाँ पे भी दोनों मोबाइल का टास्क हैं ना, मसला है सर। ओके ओके, जिनके पास इश्यूज आ रहे हैं ना उन्होंने दोनों टास्क सबमिट करने हैं, दोनों के रिपोर्ट्स, सही है, जी सर। कंप्लीटेड रिपोर्ट्स बिफोर द ठीक है सर, मंडे, अपकमिंग मंडे, सही है। जिनके इंशाल्लाह। पास इशू नहीं है ना वो ऑनलाइन बैठ जाएं और ये जो टास्क है ना उनको परफॉर्म करें। मैं एक 10 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा, तो मैं ऑनलाइन हूँगा। आपके अगर किसी के क्वेरीज हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी अवेलेबल अंटिल 1:30 PM, सही है। तो ओके सर। 1:30 PM के अंदर अंदर अगर आप टास्क परफॉर्म, अगर आपको टाइम चाहिए होगा तो आई विल एक्सटेंड दैट, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन टास्क परफॉर्म करें सो दैट इज़ गुड, सही है। और ठीक जिनके है। पास नेट का मसला आ रहा है या लैपटॉप्स के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है वो तो जल्द से जल्द इंस्टॉल करें, फिर मंडे से पहले पहले मुझे रिपोर्ट देनी है, सही है। सर मैटलैब कोड तो नहीं लिखना ना अभी, खाली वो पावर वर्ड सिमुलेशन की करनी है। हेलो। नहीं, मेटलैब कोड भी लिखना है। अच्छा ठीक है। सर मैटलैब कोड में थोड़ा सा मसला था, तो वो अभी समझाएंगे या जब वापसी आएंगे तब समझाएंगे? क्या मसला? सर वो आप कोड खोलें एक दफ़ा। एक मिनट, टास्क नंबर 1 वाला। जी सर। सर अच्छा, इसके अंदर जो आपने ये जो V2 V3 V4 की इक्वेशन, ये जो इसके अंदर लूप के अंदर लिखी हुई है ना, तो ये बात थोड़ी सी दोबारा रिपीट कर दें। अच्छा, अभी इस तरह के जो 3 इक्वेशन मैंने आपके साथ अभी शेयर की, एक मिनट में जस्ट लेट मी शेयर इट अगेन। अच्छा, ये जो 3 इक्वेशन है ना आपने इसको मैटलैब के अंदर लिखनी है, सही है। अभी इसका जो सही है। सिंटेक्स है वो मैंने आपको बता दिया कि यूनिट CONJ फॉर कंजुगेट एंड आयोटा पर J, सही है, एंड स्टेरिक पर मल्टीप्लिकेशन, सही है। अभी ठीक है सर। आई नीड टू राइट दीज 3 इक्वेशंस विद इन द मैटलैब। सो ये आपके 3 इक्वेशंस है, सही है। दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिन्यूमरेटर, दिस इज द अस्सलाम होल वालेकुम स्क्वायर। सर। जी, आप किस टाइम आए? वालेकुम सलाम। सर ये नहीं, मैं पहले से ही ज्वाइन किया है सर। काफ़ी बच्चों का इशू है, नेट का भी और लाइट का भी। तो मंडे ही कर लें सबके लिए, फिर कुछ अभी सबमिट करेंगे कुछ बाद में। मेरा ला आपके मंडे ही पास ठीक रहेगा सर। जो डेडलाइन है ना लैब रिपोर्ट सबमिशन की, वो सारों के लिए मंडे है। लेकिन बस अभी सही है जो सर। जो स्टूडेंट चाह रहे हैं कि वो अभी परफॉर्म करें ऑनलाइन रहते हुए, तो मैं पता नहीं अवेलेबल सर, ये हूँगा। सॉफ्टवेयर चलते चलते बंद हो जाता है।
मेरा ख्याल है आराम से कर लेंगे बाद में। तो वो तो आपके एंड पे मसला है ना, आपके लैपटॉप में इश्यूज होंगे। नहीं सर, वो कुछ देखते हैं इशू के रिजॉल्व करते हैं असल इसे। में मुझे कोई इशू नहीं है, मैं जो है तो मैं आपके ऑनलाइन, चूँकि अभी सिंक्रोनस मोड में लैब्स है ना, तो मैं ऑनलाइन भी ले सकता हूँ, लेकिन मसला आपको होगा। सही है, फिर बाद में ये ना कहना सर कि ग्रुप आपने में लैब। सभी मैसेजेस कर रहे हैं कि मतलब मंडे तक करा ले, तो सबका मंडे तक करा ले सर, क्योंकि हर एक बंदा कह रहा है ग्रुप में कि मंडे तक करा ले। नहीं, जो रिपोर्ट सबमिशन की डेट है वो तो मंडे है, वो तो सारों के लिए मंडे है। मेरे कहने का मकसद ये कि अभी कोई स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करना चाहता है रहते हुए, ऑनलाइन रहते हुए, सो आई एम अवेलेबल टिल 1:30 PM। सही है सर। सर अगर कोई मसला हो तो हम टीम्स पे वैसे भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ अच्छा सकते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये अटेंडेंस ज़रा आखिर में जाते हुए 014 014 प्रेजेंट सर। 026 ओके। सर 014 अच्छा, के लिए कहा जी। हाँ, अच्छा इस तरह है सर कि 026 अभी प्रेजेंट था सर, लेकिन वो यहाँ पे लाइट का मसला चल रहा है सर, बार बार जीरो डिस्कनेक्ट टू हो रहा सिक्स सर उसके नेट का मसला है सर। है। यस सही सर। सही। सर यहाँ अच्छा हैदराबाद फेज 6 में इंटरनेट का इशू चल रहा है। ओके, अच्छा एक मिनट आप वेट कर ले, मैं लिस्ट चेक कर लूँ ना, तो फिर मैं अगर अटेंडेंस लेने की ज़रूरत नहीं है तो मैं फिर आपको लीव करूँगा, अगर अटेंडेंस लेने की ज़रूरत है तो मैं फिर आपको बता दूँगा। सही है, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ओके सर। सर एक क्वेश्चन है सर। हेलो यस, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? सर, ये जो बस के अंदर हम लोग आप वो पर यूनिट में वैल्यूज डाल रहे थे, वो हमारे पास इसमें एंगल में आ रही होती है कि पर यूनिट में मैग्नीट्यूड और एंगल लिखना है, इसको हम लोग आईजे में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आई और जे में जो है तो आपने इसको कैलकुलेटर में आपने उसको करना नहीं नहीं, होगा। सॉफ्टवेयर के अंदर सर वो बोल रहे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और एंगल डिग्री बताओ। आप पावर वोल्ट सिमुलेटर की बात कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, जो आपके पास जो पावर वोल्ट सिमुलेटर में जितने भी जो बस डेटा है वो मैग्नीट्यूड और एंगल में होता है। सही है, तो आपने पहले क्या करना होगा कि आपने जो, अगर आप मेटलैब में उसको सॉल्व कर रहे हैं, सही है, तो जी मेटलैब सर। में कोई ज़रूरत नहीं है उसको कन्वर्ट करने की, क्योंकि मेटलैब में तो आप सिर्फ सिंपल कोड लिखते हैं ना। यस सर। जबकि पावर वोल्ट सिमुलेटर में क्या होता है कि पावर वोल्ट सिमुलेटर में आप जो है तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सिस्टम को सिमुलेट करते हैं। सही है, यस सर। तो अगर लेट सपोज यहाँ पे आपके पास, लेट मी शेयर द स्क्रीन। अच्छा, ये जो वैल्यू है ना बस नंबर 1 की, सही है, यस सर। या इस टास्क पे आ जाए। सही है, जो बस नंबर 1 की जो वैल्यू है वो 1+J0। सही है, तो यस अगर सर। 1+J0 को आप कन्वर्ट करें उसमें पोलर फॉर्म में, सही है, तो वो फिर आपके पास मैग्नीट्यूड और एंगल 1 और 0 वहाँ भी आ जाता है। लेकिन अगर लेट सपोज आपके पास यहाँ पे गिवन है 1+J0.9, 1+J0.8 एट्सेट्रा, तो आपने उस केस में उसको मैग्नीट्यूड और एंगल में कन्वर्ट करना होता है। सही है, जब आपके पास कम्प्लेक्स जो पोर्शन है वो ज़ीरो हो तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि you can directly find out the magnitude and angle by just looking at the quantity. But if ओके सर। the complex part is not zero, you need to write the, you may need to calculate the। अच्छा, इस केस में यहाँ पे एक चीज़ ज़रा ये मेंशन कर रहा हूँ ना, कि ये जो लोड्स है ना वो किस क्वांटिटी में गिवन है, सारे के मेगा सारे। वोल्ट। नहीं, वो तो है, ये एक्चुअल क्वांटिटीज़ में गिवन है, यहाँ पे है बेस क्वांटिटी, नज़र आ रहा है? सही है, जब आप मेटलैब में इसको लिखेंगे ना मेटलैब में, तो यू नीड टू राइट द पर यूनिट क्वांटिटी इनसाइड मेटलैब। सही है, you need to write these three quantities are in per unit quantity। सही है, तो जब आप पावर की क्वांटिटी को उसमें लिखेंगे ना मेटलैब के अंदर, तो आपने क्या करना है कि आपने एक्चुअल क्वांटिटी को किस पे डिवाइड करना है,
बेस क्वांटिटी पे, सही है। एंड देन यू नीड टू राइट द, आई थिंक देयर आर 4 लोड्स इन टास्क नंबर 2, सो यू विल टास्क हैविंग नंबर 1 देखिए आप, एक मिनट, टास्क नंबर 1 देखें आप, खोलें एक मिनट सर। जी। इसमें ये सर, ये लोड की जो वैल्यूज है वो S3 के नाम से गिवन है। अच्छा, ये जो वैल्यूज है ना, ये पर यूनिट है, यहाँ पे बेस है। बस ये लोड की हैं। नहीं, ये जो वैल्यूज है, अगर आप ये लोड्स के हैं एक्चुअली, दिस इज द एक्टिव पावर, दिस इज द रिएक्टिव पावर, सही है। जब आपने पावर वोल्ट सिमुलेटर में इसको लिखना है ना, तो यू नीड टू मल्टीप्लाई दिस पर यूनिट क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय बेस क्वांटिटी, बिकॉज एक मिनट में ज़रा आपको ये समझा दूँ। सर ये कहाँ लिखना किधर है? आपके पास पावर वोल्ट सिमुलेटर में जितनी भी क्वांटिटीज होती हैं वो हमेशा किस में होती हैं, किस शेप में? पर यूनिट में होती है सर, क्या सर? नहीं, जो लोड की क्वांटिटी होती है वो P होती है, और या Q होती है, और इसके पास Q, सही है, वो हमेशा मेगावाट्स में होती है पावर वोल्ट सिमुलेटर के अंदर, और मेगावार में, सही है। तो Yes, इस sir. केस में क्या होगा कि जब आपने, लेट सपोज आपके पास गिवन है S इज इक्वल टू सर 0.6% सर 0.1 प्लस J 0.2, इस तरह की क्वांटिटी गिवन है, सही है। आपके पास बेस क्या है टास्क नंबर 1 में? 100 MVA है, सही है। Yes, तो अगर sir. मैं यहाँ से मैं एक्चुअल क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, दिस इज पर यूनिट क्वांटिटी, सही है, सही है। Yes, sir. तो S पर यूनिट इज इक्वल टू S एक्चुअल, सही है, दिस इज एक्चुअल डिवाइड बाय S बेस, सही है। अगर मैं इसको फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये आपके पास यहाँ पे S बेस कितनी गिवन है? सर 100 मेगावाट, 100 है, और पर यूनिट कितने हैं? 0.1 प्लस J 0.2, सही है। तो अगर मैं 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आपके पास जो P है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर 10 हो जाएगी, 10 मेगावाट। और Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी ना, सही है। इस J 0.2 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू J20। तो जो J20 है, इट मीन इट इज़ हैविंग ए Q पोर्शन ऑफ 20 मेगावाट, सही है। तो आपने जब पावर वोल्ट सिमुलेटर में इन दोनों क्वांटिटीज को लिखना होगा तो यहाँ पे आपने P को 10 और Q को 20 लिखना होगा। सो आई होप दैट पॉइंट इज क्लियर। ओके सर। अच्छा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे अभी पूछ लें। सर मेरी अटेंडेंस लगे मैं प्रेजेंट हूं सर 026। अच्छा, अटेंडेंस लिस्ट मैंने डाउनलोड कर दी है, तो सो नो नीड टू टेक द मैनुअल अटेंडेंस। अच्छा, आपने बीच में लीव किया हुआ था फिर ज्वाइन किया 026? सर लीव नहीं किया तो थोड़ी देर के लिए मैं बाहर चला गया था, थोड़ा काम था सर, तकरीबन 6 मिनट तक मैं ही था। वो पूरा लिस्ट मेरे पास आ चुका है, सही है, ऑनलाइन MS टीम पे। तो अटेंडेंस मैनुअली देने की कोई ज़रूरत नहीं है। वंस अगेन मैं रिपीट करता जाऊं कि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि उसको ऑनलाइन परफॉर्म कर ले अभी के अभी, तो मैं 1:30 तक अवेलेबल हूँगा। अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि ऑनलाइन परफॉर्म करने की बजाय वो घर में परफॉर्म करें, सो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपने इसको मंडे से पहले इसको सबमिट करना होगा, सही है। ये ठीक है सर। सही है सर एक और था, अटेंडेंस आप कॉल कर दें। जी, आपने जो सर आपने जो अटेंडेंस डाउनलोड किया उसको आप कॉल कर लें। क्या कर पता तो चल जाए सर के अटेंडेंस लग गई है। सर जिसकी लगी है सर वो बता दें, मतलब पेज नंबर बता दें। ओके ओके, मैं यहाँ पे लिस्ट, चाहिए लिस्ट नज़र आ रहा है आपको? ये 392, बस इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारों का मेरे पास रिकॉर्ड है। तो मैं इससे फिर जो अटेंडेंस है वो मार्क कर दूंगा, सही है। वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका है, सही है। सर इसमें सही है, 207 का देखिएगा।
207। अगर आपने मीटिंग अटेंड की हुई तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हेलो सर। सर मेरा सर नाम ज्वाइन की हुई थी, यहाँ पर नहीं आ रहा। ये 207 है ना? सर सही है सर। 510 का सर लेफ्ट आ रहा है सर, मैं सही ज्वाइन है सही है सही है, जॉइंट है सर 207। सर 218 नहीं आ रही सर 510 का देख लें। यार सारू की होगी, आपने जो है तो ये जो भी ये ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिस्ट है ना, सर मैंने तो 45 पे ज्वाइन यहाँ किया था पे और मेरा लेफ्ट आ रहा है सर। सर मैं वो फिर दोबारा शुरू से ज्वाइन आ कर रहा रहा हूँ सर, होगा मेरा ना। 218 पर सर यहाँ पर नेट का मसला है, सर ये आया मतलब नहीं कि मेरा। डिस्कनेक्ट हो जाता है। सर 172 लिखा ही नहीं हुआ। सर यार आपने 218 में लेफ्ट लिखा कर हुआ, दिया मैंने था। तो शुरू से अच्छा 172 कौन है? सर मैं हूँ। ये है ना ज्वाइन यहाँ पे, ओके सर। सही हो गया। और बाकी किस इसकी किस आईसी का? बेल्ट का मसला है। सर मेरा 392 है सर। 075 यार सर सारों ये का आप जो होगा ना। डाउनलोड है ना, ये टीम्स पे शेयर कर दे ताकि हम खुद देख लेंगे, ये सर और आप ना कोई रोज प्रॉब्लम शेयर कर होगी दिया हम करें ताकि आपको पता बता मेरी लगे। देंगे। बात करें ना सर, मैं ये इसमें पीडीएफ में कन्वर्ट करके इसको शेयर कर दूंगा, सही है, ताकि जी बाद सर, में जो क्योंकि सर मसला हो जाता है, क्योंकि अगर आप लैपटॉप पे हैं और लैपटॉप से नेट चल जाता है, फिर मोबाइल पे हम वो शिफ्ट करते हैं, तो फिर वो टाइम का मसला हो जाता है। तो ये पता नहीं किस तरह हल होगा सर अभी यहाँ। सही है। ऐसे इस तरह है कि ये जो लिस्ट है ना अटेंडेंस, ये मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके शेयर कर दूंगा, सही है। और सही अच्छा है आप सर, में से अगर कोई मसला हुआ तो आपको बता देंगे फिर आपको। ओके, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट जो अभी परफॉर्म करना चाहते हैं तो रेज देयर हैंड्स। आई होप दैट इज़ क्लियर। जो लेक्चर मैंने दिया उसमें सारा कुछ क्लियर हो गया। यस सर यस। सर मेरा नेट का मसला था तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा था, 142 आपके पास आ रहे सर, वो लेफ्ट सही है। होता वो है लिस्ट में देखिए, मेरी बात सुने, जिन स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया होगा तो वो लिस्ट में ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुका होगा, सही है। तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। अगर आपने ज्वाइन किया होता है तो वहाँ पे लिस्ट में भी नज़र आ रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेटेड लिस्ट है, सही है। अच्छा, सो वन ठीक है लास्ट सर, थिंग, थैंक यू। अगर आप में से किसी की स्टूडेंट को क्वेरीज हो तो वो मुझे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या मतलब जो ईमेल कर सकता है मुझे, सही है। और आपकी जो रिपोर्ट्स है दैट इज़ ड्यू अंटिल द मंडे, अपकमिंग मंडे, सही है। जो कि मंडे को कौन सी डेट आ रही है? आई होप दैट इज़ 5th ऑफ अप्रैल। तो सर आपने आपको जो ये मिड्स का कोई पता है कि कब होंगे? यार मुझे कुछ पता नहीं है, अभी वो इंस्टीट्यूट की पॉलिसी पे डिपेंड करता है, सही है। अगर इंस्टीट्यूट की पॉलिसी है कि इनसे ऑनलाइन मिड ले लें तो हमें ऑनलाइन लेने होंगे, सही है। फिलहाल जो है तो 11 अप्रैल तक सिचुएशन क्लियर नहीं है। 11 अप्रैल के बाद जो है तो पता चलेगा, सही है।